Okay, so we have started our chapter number 4. That is the last chapter of our syllabus for semester 5 in export marketing. That is related to financial incentives and assistance to the exporter by government. Government has come out with so many schemes, so many incentives for the Indian exporter, so that the Indian exporter should get motivated to do the business in foreign market. And these things are financial assistance to the exporters, because it has been observed that the cost of production, when it is high, the selling price is also high. And because of that, the exporter is not getting the good amount of customers in foreign countries, right? And at the same time, the importing countries, the country who are purchasing goods from us, they are charging so many taxes on us. And because of that also, the price is also going up. So over here, what government have tried to introduce certain schemes where whatever cost government can bear, government is taking it on their shoulder, and that is given in the form of, you can say, the financial assistance to the Indian exporter. क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए जब वो फॉरेन कंट्री में चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं, और उनके खर्चे इतने ज़्यादा हो जाने की वजह से उनको सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखना पड़ता है. So over here, the government is trying to give them some assistance, some help in the form of the finance. And yesterday we have learned about this scheme that is called as MDA, that is Marketing Development Assistance. Over here, the government is helping the Indian exporter to give at least 50% of actual expenditure on their research and marketing activities. As far as research is concerned, a lot of research is required to, before making or before designing the product, because the product should be as per the demand of the customer. So that requires a lot of research to be done, and that research is making the exporter to spend good amount of money into that. So under this scheme, whatever expenditure the exporter is making on research and marketing, that means giving the advertisement and hiring the showrooms and all the selling expenses, whatever altogether is the cost of the exporter, 50% of that is borne by the government. But the only thing is that you have to be in the list of this MDA. This Marketing Development Assistant, this scheme is applicable for specific goods. तो अगर आप वो गुड्स प्रोड्यूस करके फॉरेन मार्केट में सेल करते हो, तो अगर वो चीज वहां पे सेटिस्फाई हो जाती है, देन गवर्नमेंट आपको 50% जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है वो आपको रीइंबर्स करके देगा. एंड इफ यू आर applying or subject fulfilling the conditions, the additional conditions, then even 60% of actual expenditure can be borne by the government. आपको जितना भी आपने खर्चा किया है 60% आपको गवर्नमेंट दे देगी, reimburse कर देगी. So that is a scheme about the MDA, and the MDA has been introduced with the purposes that the business should be expanded, business should get developed a goodwill and the corporate image in the market, then there should be good earning of foreign currency, and the products should be the developed one, because when a businessman is entering into the global market, there are the request or you can say the expectations from the exporter to launch a good quality product. So under this MDA scheme, the exporters are getting financial assistance, so they are able to even improve the quality of the product. So this is what we have understood yesterday. Now today we are going to understand a new scheme, that is Market Access Initiative. Market Access Initiative. The short form is MAI. Now, in export marketing, there will be question related to abbreviations. That means short form will be given to you and you have to reply for the full form. Now, over here, how the question will be like, we may ask you that in MAI, M stands for dash. मतलब आपको पूरा abbreviation नहीं पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा कि MAI में M का मतलब क्या है, whether it is market, whether it is marketing mix, whether it is material, right? This is how something will be given to you.
So it is very much necessary for export students to keep these things in the mind. Right? जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में जो ये किया, ये था MDA. MDA का फुल फॉर्म है मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस. ये हम लोगों ने एक स्कीम के बारे में डिस्कशन कर लिया था. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव. Now, this particular initiative has played a very important role for the exporters. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, एक्सेस जब ले रहे हैं, तब उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. राइट? तो वो सारा जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट हमें रीइंबर्स करके देता है. पूरा नहीं, पर एटलीस्ट सम पार्ट वी आर गेटिंग इट. सो दैट इज द MAI स्कीम. Now we will understand it in a very detailed manner. Let us understand, let us read what is given over there. It is given that MAI, that is Market Access Initiative Scheme, is an export promotion scheme introduced to promote India's exports on a sustained basis. And just make a box over here. Sustained basis. As far as the business is concerned, in business sometimes you may get very high demand for your product. Sometimes the demand will go very down, though you may be having the production, but you are not able to sell it because there is no demand. In fact, you might have heard about the recession in the automobile industries these days. There is very less demand of the automobiles, and whatever companies also are producing all these motor products, they are about to close their plant for few months. क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की, तो वो बनाएंगे ही क्यों? ऑलरेडी जो उन्होंने बना के रखा हुआ है वो रखने के लिए भी जगह नहीं. बिकॉज when you are completing, you are finishing your product, you have to keep it in the godown, you have to preserve them. And that godown is also having its own limitations. No, there is the limitation of the area. You cannot keep on purchasing new godowns and keep your material over there. वो मटेरियल बिकेगा तभी तो जगह बनेगी, तब जाके आप नया मटेरियल वहां रखेंगे. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? मार्केट में डिमांड है ही नहीं. सो these companies are forced to stop the production for few months. After few months again, there may be some demand and then they will start it. But for the time being, the work is stopped. And when you are stopping the production, that means your entire business is stopped. आपका प्रोडक्शन रुक गया तो आपका पूरा बिजनेस ही रुक गया है. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है. तो ये जो स्कीम है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, ये ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए है कि उनकी जो डिमांड है वो कभी कम ना हो. इट शुड बी ऑन सस्टेन्ड बेसिस. सस्टेन्ड मींस कंटिन्यूएशन, जिसको रोका नहीं है. आपको किसी भी रीजन से ना तो कभी प्रोडक्शन रुकेगी, ना तो कभी किसी चीज की वजह से आपका काम रुकेगा. इट शुड बी कंटिन्यू, सस्टेन्ड. That is on sustained basis. So that's why I told you this particular scheme is very important, because it is helping the Indian exporters to face the risk of having the less demand in the market. So this scheme is helpful for that. Now this scheme adopts focus on product and focus market approach. This scheme is actually comprising of two schemes. दो तरीके का स्कीम्स उसके अंदर आ जाता है. एक तो है ये फोकस प्रोडक्ट और दूसरा है फोकस मार्केट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what is focus product scheme, FPS. Focus product scheme, major products or sectors including, here I'm just underlining few words, engineering, electronics, rubber, chemical, plastics, cotton boxes, etc. These products are called as the major products or the major sector where the exports are taking place. Right? हर साल जब एक्सपोर्ट का जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तब एक्सपोर्ट्स का एक एनालिसिस किया जाता है. You must be remembering that in our chapter number 1 we have discussed that India's export trade position, जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं,
किसका बिजनेस सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, ये सब चीजें सीखी थी। तो हर साल के एंड में गवर्नमेंट एनालाइज करता है और उसमें ये जो प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, रबर, केमिकल, प्लास्टिक्स, कार्टन बॉक्सेस, सॉरी, ऑल दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स, राइट। तो ये जो हमारा फोकस प्रोडक्ट स्कीम है वो इन प्रोडक्ट्स के लिए है, क्योंकि ये एक मेजर सेक्टर में आ जाते हैं। The products under these sectors get financial assistance for their promotion. For their promotion. Promotion का मीनिंग रहता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, या whatever expenses you are making to increase your sale, whatever expenditure, that particular product will be getting financial assistance from government. तो आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट इनकी लिस्ट में आ जाता है, आप ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके फॉरेन मार्केट में सेल करते हो, तो आपका जो भी खर्चा होता है एडवर्टाइजिंग का या प्रमोशन का, उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से, राइट। पूरा खर्चा नहीं देते हैं, बट दे गिव यू सम पार्ट ऑफ द। Apart from the financial assistance for various activities, the individual exporter get duty-free scrip. This is underline again over here. Duty-free scrip of 2% on FOB value of exports. आपको प्रमोशन का जो भी खर्चा होता है वो तो इस स्कीम के अंदर आप क्लेम कर ही लोगे, आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा या इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर है, जो कंपनी ये खर्चा जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपका जितना भी सेल होगा, एफओबी वैल्यू का कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एफओबी मींस फ्री ऑन बोर्ड, इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर एक्सपोर्ट्स। ये एक तरह की सेल वैल्यू ही है। तो जितनी आपकी सेल वैल्यू रहेगी एक्सपोर्ट्स की, उसका 2% आपको ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स में आ जाएगा, मतलब आपके नाम पे वो पैसा जमा किया जाएगा और आपका ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट दिया जाएगा। सो व्हेनेवर इन फ्यूचर यू आर सपोज्ड टू पे एनी मनी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल से दैट आपके अकाउंट में इतना पैसा हमारे पास जमा है, अभी इसको छोड़ दो, आप बाकी का पैसा भर दो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ना। And apart from that, these duty-free scripts now are transferable also. आपने सपोज कुछ सेल टर्नओवर किया और आपको कुछ 5 लाख रुपए के ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने आपको कैश नहीं दिया 5 लाख, पर क्या किया, आपके अकाउंट में जो आपका EIC कोड का अकाउंट है, वहां पे 5 लाख रुपए आपके नाम पे क्रेडिट कर देंगे। That you owe, you are supposed to get 5 lakhs rupees from government. तो अगर आपने कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करी है और आपको उसके ऊपर कुछ टैक्सेस पे करना है, तो गवर्नमेंट बोलेगा 5 लाख रुपए हमारे पास ऑलरेडी है, बाकी का जो बचता है वो आप हमें दे दो। तो समझो आपने कुछ इंपोर्ट किया ही नहीं, तो 5 लाख ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अनयूज्ड रहेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप वो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है या कोई थर्ड पर्सन है जो हमेशा इंपोर्ट करता रहता है, उसको तो टैक्सेस पे करने रहते हैं, तो वो आपको अप्रोच करेगा और कहेगा कि आपके पास ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट पड़े हुए 5 लाख के ऐसे ही पड़े हुए, कुछ काम के नहीं है, तो आप एक काम करो, आप मुझे दे दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे देता हूँ, और मैं फिर ये गवर्नमेंट को दिखा कि 5 लाख रुपए का क्लेम लूंगी, तो दोनों को फायदा हो जाएगा। आपको 2 लाख रुपए कैश मिल गए, उसको 3 लाख रुपए का टैक्स का बेनिफिट मिल गया। तो दिस इज हाउ द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इनिशियली जो था वो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट जो थे वो ट्रांसफरेबल नहीं थे, तो फिर भी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स डिस्करेज हो जाते कि क्या है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको हम यूज भी नहीं करते। बिकॉज मेनी टाइम्स ना वी आल्सो डू दैट, हमारा कैशबैक में अमाउंट आ जाता है, पर वो कैशबैक अमाउंट रहता है कूपन्स के फॉर्म, है ना। तो वो कूपन्स हम लोग कभी कभी यूज ही नहीं करते कि अरे हम लोग थोड़ी ना ये ब्रांड खरीदते हैं, ये चीजें खरीदते ही नहीं है, तो ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है और फिर वो ऐसे ही उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। पर समझो अगर उन्होंने उसी कूपन्स के ऊपर बोला कि आप ये कूपन ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी को दे दो, तो अगर कोई मेरा रिलेटिव वो चीजें खरीदना चाहता है तो मैं वो कूपन उसे दे दूंगा, तो उसे डिस्काउंट मिलेगा, उसमें से कुछ पार्ट वो मुझे दे देगा, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। तो फायदा होना चाहिए ना। तो over here also under this MEI scheme they have introduced focus product scheme
where they made a list of certain products which are considered as the major products or major sectors, and they are providing financial assistance for their promotion. Not only that, along with the financial assistance, the individual exporters are getting duty-free scrips of 2% on the export value. So over here, this is a double benefit which they are giving. तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट की स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम. लेकिन इसके साथ साथ एक और भी स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट, एंड दैट इज फोकस मार्केट स्कीम, एफएमएस. ये जो पहली वाली स्कीम थी ये प्रोडक्ट के बारे में, और दूसरी स्कीम उन्होंने क्या बनाई है, मार्केट की स्कीम बनाई है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं है. तो सर्टेन मार्केट मतलब इन्होंने मार्केट्स की एक लिस्ट बना दी. इन्होंने कहा है कि आपकी प्रोडक्ट चाहे जो भी होने दो, पर वो इस पर्टिकुलर मार्केट्स की लिस्ट में आ जाता है तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा. तो यहाँ पे दिया है, एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू सर्टेन मार्केट्स आर प्रोमोटेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस लिस्टेड अंडर एफएमएस. एफएमएस के अंदर उन्होंने मार्केट्स की एक लिस्ट बना दी है. आपके प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, आपकी कंपनी चाहे जो भी हो, पर अगर आप उन लिस्टेड मार्केट्स में अपना बिजनेस करते हो तो आपको एफएमएस का बेनिफिट मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी. देन अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस एक्टिविटीज, द इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स गेट ड्यूटी फ्री स्क्रिप ऑफ 3% ऑन एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे आपको उसका 3% जो है ड्यूटी फ्री स्क्रिप मिल जाएगी, जिसको आप अगर यूज नहीं करते हो तो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है. नंबर 1 इज अ फुल फॉर्म, राइट? फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस इज व्हाट? फोकस प्रोडक्ट स्कीम. Here it is a list of the major products or major sectors comprising of engineering, electronics, rubber and all articles. And over here you are going to get financial assistance for their promotion. Not only that, 2% of FOB value will be given as duty-free scrip also. Then another scheme is focus on market scheme or focus market scheme. Here the government have made a list of markets, and if you are selling your goods in these listed markets, you will be getting the financial assistance. You will be getting financial assistance for various activities. आप जितने भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी आपके खर्चे हो जाते हैं एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हो. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इवन द ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट ऑफ 3% ऑफ योर द एक्सपोर्ट. एफओबी वैल्यू आपकी जितनी आएगी उसका 3% आपको ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट भी मिल जाता है. तो ये जो MAI है, ये जो स्कीम है, यहाँ पे 2 स्कीम्स हैं, right? It's comprising of 2 schemes, FPS and FMS, focus product scheme, focus market scheme. ये थोड़ा सा आपको केयरफुली ध्यान में रखनी है ये बातें. Now activities eligible for financial assistance under the scheme. यहां तक तो हमने पढ़ा कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है. तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन सी एक्टिविटीज के लिए मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने वो एक्टिविटी जो इन्होंने लिस्ट में दिया है, अगर आपने वो एक्टिविटी कर दी तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे. तो इन्होंने पहले से एक लिस्ट बना के रखी है, वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं. द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स अब्रॉड. अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो फॉरेन कंट्रीज में है और वहां पे आप क्या करते हो, मार्केटिंग प्रोजेक्ट लगाते हो. मार्केटिंग का मीनिंग बहुत बड़ा है. वी हैव लर्नड इन MHRM. Marketing does not mean only popularizing the goods, but it requires all kind of activities, right? From identifying the demand of the customer to selling the goods to the customer. Everything is called as marketing. So when you are doing such projects in the foreign market, abroad means apart from India, then you are eligible to get financial assistance. Then another activity which they have counted, that is capacity building training and quality upgradation. Many a times your own staff require the capacity building training. कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया,
कोई नया मशीन आ गया, कोई नया प्रोसीजर आ गया प्रोडक्शन का, तो उसके लिए आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। उसका बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, और क्वालिटी अपग्रेड करना है तो उसका भी खर्चा आ जाता है। सो वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू आर मेकिंग ऑन दीज हेडिंग्स, you can claim it from government, because that is not your cost of production. These are the things which you are doing for the promotion of your product. अपनी प्रोडक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो या क्वालिटी को अपग्रेड कर देते हो, तो वो सारी चीजों का जो भी खर्चा है वो इस एक्टिविटी में शामिल किया जाता है, और आप गवर्नमेंट से उसके बारे में ले सकते हैं। यू कैन टेक द रीइंबर्समेंट ऑफ। Then support for statutory compliances. Many a times, you are supposed to follow certain legal rules. Compliances means when you have to complete the rule, you have to follow the obligations. Statutory means legally. कई बार आपका लीगल ये रहता है, वे रहता है मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली इंडियन एक्सपोर्टर्स को बिजनेस नहीं करने देते हैं। बहुत सारे स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं, लीगली आपको परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, फिर वहां पे गवर्नमेंट के अलग अलग क्लॉजेस रहेंगे, फिर आपको वो साइन करने हैं, फिर वो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है, तो उसमें भी काफी सारा खर्चा हो जाता है। जो भी आप वो एक्टिविटी करोगे उसका कुछ हिस्सा आपको सरकार अपनी तरफ से देती है, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। देन द अनदर एक्टिविटी, इट इज मार्केट स्टडीज। वॉट एवर स्टडीज, आपका मार्केटिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले, लेकिन मार्केट स्टडीज प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी तो आपको कंटिन्यूअसली स्टडीज करने रहते हैं ना, कि कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं, वो क्या और चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं, व्हाट आर द वेरियस कंप्लेंट्स व्हिच दे आर हैविंग, व्हाट आर द वेरियस फीडबैक्स व्हिच दे आर हैविंग, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट स्टडीज। So if you are spending money on this market studies, even that is also considered or allowed as the activity under MAI. Then the next is project development. Project development means, if you are developing any kind of project, then also you are eligible to claim for that. Project development में काफी खर्चा हो जाता है, मतलब शुरू से ही वो प्लांट कैसे लगाना है, प्लांट नियर बाय लोकेशन में होना चाहिए, विद द लीगल रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, आप क्या नया प्रोजेक्ट डेवलप करते हो उसका जो भी खर्चा रहेगा, इट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। देन डेवलपिंग फॉरेन ट्रेड फैसिलिटेशन वेब पोर्टल, ये एक तरीके का फैसिलिटी है। आप जब फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जाते हो तब वेब पोर्टल पे आपको सारी जानकारी देनी पड़ती है, ऑनलाइन सारी जानकारी देनी, तो उसका जो भी आपका खर्चा आएगा वो आपको गवर्नमेंट दे देगी, और ये एक ऑफिशियल वे रहता है। आप डायरेक्टली अपनी एक साइट बना के पब्लिसिटी करोगे वो अलग बात हो जाएगी, डिफरेंट हो जाता है, पर कई बार परमिशन के बिना आप उस कंट्री में वो एड भी नहीं दिखा सकते। तो जो भी आपका उसका वेब पोर्टल का जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा, दैट यू कैन क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट इज द एक्टिविटी which is allowed under MAI. Then the last activity is support for cottage and handicraft units. If you are performing certain activity which is helping cottage and handicraft units, ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस जो एक घरों में किए जाते हैं, बहुत बार आपने भी देखा होगा, नए घर के अंदर ही लोग काम करते हैं, फैक्ट्री जैसा ही रहता है, और हैंडीक्राफ्ट रहता है, हाथ से काम करते हैं, मशीन से नहीं करते हैं। तो आप अगर ऐसा बिजनेस एक्सपोर्ट का कर रहे हो जो इस तरह के लोगों को मदद करता है, तो ये एक्टिविटी भी MAI में काउंट की गए हैं। Whatever expenditure you are making on this particular activity, you can claim reimbursement of the same from government under MAI. So MAI एक ऐसा स्कीम है जिसने हर एंगल को कवर कर दी, और हर तरह के प्रोडक्ट्स, लगभग सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और अगर प्रोडक्ट में नहीं आया तो मार्केट में उन्होंने काउंट कर लिया। तो अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो इसकी लिस्ट में नहीं आती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट, बट इफ यू आर सेलिंग दीज गुड्स इन द मार्केट व्हिच इज मेंशन्ड बाय दिस गवर्नमेंट,
then you can claim the financial assistance. Not only that 3% आपको ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, और ये सारी एक्टिविटीज आपको क्लेम करने का पूरा राइट गवर्नमेंट ने दे दिया है. You can claim for these activities as the reimbursement part. So with this particular part comes to an over. Tomorrow we will continue with the next part of the same chapter.